according to Ambedkar, political democracy, which is merely understood as universal suffrage rights institutions, will fail if it is not supported by social democracy. सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अगर सोशल डेमोक्रेसी नहीं लाता है तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहेगा. सो आई बिलीव दैट अंबेडकर का ये एक प्रोफेटिक स्टेटमेंट था. फॉर अंबेडकर डेमोक्रेसी वाज नॉट मियरली ए पॉलिटिकल अरेंजमेंट बट ए टूल फॉर अचीविंग सोशल जस्टिस, equality and human dignity, especially for the marginalized and including the Dalits. We, the people of India, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, not one particular category, not one particular people of one particular faith or caste or religion. Voting or political representation. It is more than that. But it should be reflected in social relationship, economic arrangements and day-to-day interaction between individuality. Liberty, equality, fraternity are the pillars of democracy. So, according to Ambedkar, political democracy, which is merely understood as universal suffrage rights institutions, will fail if it is not supported by social democracy. So, Ambedkar के लिए social democracy precedes political democracy. So, अगर सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अगर सोशल डेमोक्रेसी नहीं लाता है तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहेगा. सो आई बिलीव दैट अंबेडकर का ये एक प्रोफेटिक स्टेटमेंट था. और जो आज हम देख रहे हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अगर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के ऊपर कभी भी ध्यान और आकर्षण नहीं दिया है. सो इन अदर वर्ड्स, फॉर अंबेडकर डेमोक्रेसी वाज नॉट मियरली ए पॉलिटिकल अरेंजमेंट बट ए टूल फॉर अचीविंग सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी, especially for the marginalized and including the Dalits. और एक चीज मैं भी यहाँ पढ़ना चाहता हूँ जो प्रियम्बल है, क्योंकि प्रियम्बल देश का जो एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करता है और कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हम क्या अचीव करना चाहते हैं वो इन्हें नक्शल प्रियम्बल कहता है. सो लेट मी जस्ट रीड द प्रियम्बल. वी द पीपल ऑफ इंडिया, we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. So here again, when Ambedkar is writing about we, the word we, representing all the sections of the society, not one particular category, not one particular people of one particular faith or caste or religion, but we means including all. So whether everybody can say that
I belong to this nation, or this nation belongs to me, or how much, what of what percentage I belong to this nation is a big question, big question. Or abhi, coming to the present context, one crime is committed against a Dalit every 18 minutes. हर 18 मिनट्स में दलित के अगेंस्ट में क्राइम हो रहा है. अभी इस सेशन चलते चलते कितना एट्रोसिटीज ऑलरेडी हो चुका होगा दलित के खिलाफ. And 13 Dalits murdered every week. 27 atrocities against Dalits every day. So according to India's National Crime Records Bureau, around 46, or I think according to 2022 NCRB report, it's around 49. So it is increasing ever after 2022. Okay. So violence against Dalit has been increasing. Now coming to Odisha, so scheduled tribe and scheduled caste together constitute nearly 40% of the state's total population. 40% अगर OBCs को जोड़ दे तो it goes to more than 80-85%. फिर भी अपने स्टेट में और वही लोग इतना persecute हो रहे हैं, they are being persecuted and atrocities against them committed. और ये भी एक kind of conspiracy है upper caste का कि ज़्यादा से ज़्यादा उड़ीसा में जितना भी कास्ट वायलेंसेस होता है OBCs against the SC and ST. अपर कास्ट उसको इंस्टिगेट करते हैं बहुत चालाकी से, लेकिन जितने भी कास्ट वायलेंसेस होता है that's all between the OBCs and Dalits and the tribals. So in annihilation of caste, what Ambedkar sees in a nutshell is caste as anti-national. Not a person who is anti-national as it is labeled today. अगर डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं होता है और कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है that really plays a toll on the state of democracy. Therefore, caste needs to be considered as anti-national, anti-social, and anti-democratic. So democratic, so caste can never make democratic successful. That has to be a common understanding. J.S. Mill एक बहुत अच्छा बात करते हैं, especially in the context of women. How can a nation progress by excluding 50% of the population in England context? तो उसी को अगर हम यहाँ देखें, सिर्फ women को नहीं, अगर SC, ST, OBC, caste factor अगर ले, because caste basically believes in the philosophy of exclusion. It talks about किसको हम अलग रखना है, जोड़ने का बात कभी नहीं करता. Caste only talks about their own selfish interest. उनका मुझे क्या मिलेगा, अगर मुझे इतना मिल रहा है मैं किसी के साथ शेयर ना करूं. इसीलिए फ्रैटर्निटी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर है, कास्ट में कभी भी नहीं आ सकता. अगर मंदिर भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो because it's every individual going to the temple, तो कभी फ्रैटर्निटी कभी नहीं है. So therefore in this context, तो दलित राइटिंग कहाँ पर आता है, और उड़ीसा का उसके ऊपर में डेफिनेटली कास्ट एट्रोसिटीज के ऊपर आई थिंक पिछले सेशन में भी
somebody was talking about एक ईस्टर्न बेल्ट का एक ऐसा लिटरेचर, दलित लिटरेचर खास करके कोई एक जैसे महाराष्ट्र में और पंजाब में अगर देखेंगे तो मूवमेंट मतलब दिखा गया है, यू नो देयर वाज ए दलित मूवमेंट। लेकिन ईस्टर्न बेल्ट में आप उसी तरह का एक दलित मूवमेंट आप एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप नहीं देखें। कोई एक कॉन्शियस दलित, एजुकेटेड दलित, सो व्हेन दे केम टू नो अबाउट अम्बेडकराइट मूवमेंट, आप अगर देखेंगे वासुदेव सुनानी, अगर उनका इनिशियल राइटिंग देखेंगे, वो भी जैसे आमतौर पर जो दूसरे राइटर्स लिख रहे थे, यू नो काइंड ऑफ रोमांटिक लिटरेचर, वो भी ऐसे ही लिख रहे थे। लेकिन जब से वो अराउंड 1997 के बाद जैसे वो अम्बेडकराइट मूवमेंट खास करके किताब पढ़ें, तो उसके बाद वो ही बिकेम कॉन्शियस एंड स्टार्टेड राइटिंग द काइंड ऑफ राइटिंग ही इज राइटिंग टुडे। सो यहाँ पर एक ब्लैक इंक करके एक शॉर्ट स्टोरी है बाय संजय बाग। Black ink is basically a satire on democracy and especially on the electoral process. तो जैसे हम देखते हैं कि इलेक्शन में और इलेक्टोरल प्रोसेस में दलित कम्युनिटी कहाँ है, उनका क्या भागीदारी है, उसके ऊपर संजय बाग ब्लैक इंक, क्योंकि जो इंडेलिबल जो मार्क हमें अभी दिल्ली इलेक्शन में सबके अंगूठा में ब्लैक इंक लगा होगा, सो संजय बाग, the narrator's grandfather, Buddha Dada, grandfather, so he tries to perceive democracy क्या चीज है, क्योंकि इलेक्शन जब इंडिपेंडेंस आया, उनके गांव को महात्मा गांधी आए और बहुत बड़ा स्पीच दे दिए कि अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, किंगशिप से हमें मुक्ति मिल गया और आजाद हो गया है। तो ये बहुत बड़े बड़े जो शब्द जो है उनको समझ में नहीं आया, तो बहुत ये, और वो जो उसको भी समझ में नहीं आया, दलित कम्युनिटी जो भी है वो सब किसी को भी समझ में नहीं, एक पजल हो गया है, ये एक मिस्ट्री रह गया है कि इंडिपेंडेंस क्या है, डेमोक्रेसी क्या है। तो फिर जैसे वो इलेक्शन आया और जो गोंपिया है, लैंडलॉर्ड जो है, वही तो ये बूढ़ा दादा सोच नहीं पा रहा है कि जो गांधी जी कहे कि डेमोक्रेसी आ चुका है और किंगशिप खत्म हो गया है, लेकिन गोंपिया आज भी जो बोल रहा है वो ही चल रहा है, तो किंगशिप कहाँ खत्म हो गया, उनको समझ में नहीं आ रहा। तो फिर लगता है कि जो वोटिंग इलेक्शन के दिन में जो इनके अंगूठा पर ये काला इंक जो लग गया है, अच्छा ये क्या मैजिक है, एक वोट दे देने से हमारे, अच्छा डेमोक्रेसी का मतलब यही है शायद, और इंडिपेंडेंस का मतलब शायद यही है। अच्छा हमें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो फिर गोंपिया उनके बीच में जाते हैं और उनके बस्ती में जाते हैं और कहते हैं कि देखिए वोट मैं नहीं मांग रहा हूँ, गांधी जी मांग रहे हैं, है ना, गांधी जी मांग रहे, गांधी जी के लिए आप वोट दीजिए, तो उस हिसाब, अच्छा तो गांधी, नाउ गोंपिया रिप्रेजेंट्स गांधी, so whatever Gompia, landlord, local landlord, he represents Gandhi. So through him they try to understand democracy, they try to understand election, they try to understand what to say, all these electoral processes. तो फिर वो गोंपिया ब्राह्मण as he is, तो उनका जो nine sacred thread लाके सबको पकड़वा देते, you can touch, so they were wonderstruck कि भाई ये डेमोक्रेसी तो वाकई में इतना बड़ा एक चेंज आ रहा है। देखिए एक हम कैसे सोच सकते हैं कि ये जो पवित्र थ्रेड है, सेक्रेड थ्रेड है, उसको भी हम छू सकते हैं, ये तो कमाल है कि डेमोक्रेसी का यही देन है। तो इस हिसाब से
फिर उनके बीच में एक तुलसी प्लांट भी ले आते हैं कि और आप इसको पूजो। तो फिर इस हिसाब से बहुत बारीकी से वो समझने को कोशिश कर रहे हैं कि क्या मिल रहा है, और फिर बाद में उनको मतलब पैसा भी बढ़ता है। अरे एक वोट के लिए हमें 10-10 रुपए का नोट भी मिल रहा है, तो ये डेमोक्रेसी का कमाल है। तो फिर बाद में आखिरी में उनको 500 रुपया नोट मिलता है। तो 500, I think Brati also she teaches, so we have taught this. So 500 रुपया नोट मिलता है, और गांधी जी का फिर वहाँ पर फोटो पिक्चर भी वहाँ है। अच्छा, शायद यही डेमोक्रेसी है, तो एक वोट दो और 500 रुपया भी मिलता है। So इस यही I think through that we can understand democracy क्या है, क्या रह गया। और I don't think it is hidden from any one of us। आज के स्थिति में अगर डेमोक्रेसी क्या है, कैसा चल रहा है, नेशन कैसे फंक्शन कर रहा है, कौन जीत रहा है, वो सब हम मतलब समझ रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि शायद डेमोक्रेसी यही है, you know। So and that is what so we are trying to really grapple with all these things। ओके, और एक चीज मैं ये भी कहना चाहता हूँ, टू टेक दलित लिटरेचर सिर्फ एट्रोसिटीज के ऊपर नहीं सीमित होता है। उसके बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स नुआंसेस है, पॉजिटिव एस्पेक्ट दलित कल्चर के ऊपर, दलित फिलोसफी के ऊपर भी, जैसे वासुदेव सुनानी एक रिसेंट जो नॉवल लिखे हैं 2023 में, यू नो Mosani Sohra Billy, you know, on the city of Delhi, you know, so Delhi, the city of tombs। तो उसमें दलित कल्चर एक वाइब्रेंट कल्चर के रूप में वहाँ पर दिखाया गया है। So I think because you know पोस्ट-कोलोनियल लिटरेचर में भी हम पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल colonization cannot be enough if it is economically and intellectually not subjugated, not colonized। तो पॉलिटिकली सिर्फ पॉलिटिकल कोलोनाइजेशन को आप सस्टेन नहीं कर सकते हैं जब तक आप इंटेलेक्चुअली और कल्चरली दूसरे जो यू नो कोलोनाइज्ड पीपल को आप कोलोनाइज नहीं करते हैं। और वैसे ही जो यहाँ पर हम देखें कि दलित कल्चर को और दलित जो भी उनका यू नो इवन फॉर यू नो फूड हैबिट्स को जिसी तरह डेनिग्रेट किया गया है, तो उसमें दे ऑल्सो फील एक, इसीलिए जो आई थिंक श्रीनिवासन, यू नो MS Srinivas talks about you know Sanskritization। So that's why the lower caste also feel inferior about their own culture, their own literature, their own customs, their own traditions। तो फिर अपर कास्ट जैसे वो बनने को सोचते हैं। लेकिन I think Vasudeb Sunani very beautifully, and he has talked about let me just he calls these people the workers, you know, rickshaw pullers, cobblers, sweepers, plumbers, rickshaw pullers, vegetable vendors, housemaids, you know, construction workers, those migrant, all of them are migrant laborers who constitute around 50 to 60 lakhs of people living in Delhi। And he is just narrating, he is seeing Delhi through their lens। So the narrator sees these people as those who have built the city। So they are the, he uses the word, they are the lifeline of the society, they are the lifeline of the city। All these people have really built the city, they are the lifeline of the city। And without these people, सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।